السلام علیکم ناظرین، ویکلی سپورٹس میگزین کھیل اور کھلاڑی کا آج کا شمارہ لے کر ہم حاضر۔ ناظرین، وقت بدلتا رہتا ہے اور ہم سے تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے تاکہ خوب سے خوب تر کی جستجو جاری رہ سکے۔ ہم نے اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کا احساس از خود ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ سے جو آپ کا چہیتا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آج کا سوال، آپ کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک کھلاڑی کی تصویر دکھائیں گے۔ اس کھلاڑی نے، جو کہ خاتون کھلاڑی ہیں، 10,000 انٹرنیشنل رن سکور کیے ہیں۔ آپ کو ہمیں فون نمبرات 2481813 اور 2481832 پر فون کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ کھلاڑی کون ہے۔ آپ کو اس کھلاڑی کا نام بتانا ہے۔ جی، یہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے 10,000 انٹرنیشنل رن سکور کیے ہیں کرکٹ میں۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کھلاڑی کون ہے۔ آپ فون نمبرات 2481813 اور 2481832 پر اگلے 20 منٹ تک جو ہیں جوابات دے سکتے ہیں۔ جن ناظرین کے جوابات صحیح ہوں گے، ہم پروگرام کے آخر پر ان کے نام پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور اب باری ہے اس سیگمنٹ کی جو خاص سیگمنٹ ہوتا ہے کھیل اور کھلاڑی کا۔ تو نظر ڈالتے ہیں سپورٹس راؤنڈ اپ پر، جس کی شروعات لوکل سپورٹس کی ان خبروں سے۔ وادی کے نامور سائیکلسٹ عادل تیلی آج کل خبروں میں ہیں، اور عادل تیلی نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو بہت وقت تک یاد کیا جائے گا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کا 3,600 کلومیٹر کا فاصلہ عادل تیلی نے 8 دن 1 گھنٹے اور 37 منٹ میں مکمل کیا اور مہاراشٹر کے اوم مہاجن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سری نگر میں جاری اینول فٹ بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل لائن اپ طے ہو گیا ہے۔ کل JK بینک کا مقابلہ ہیروز کلب جموں کے ساتھ ہوگا اور ریئل کشمیر کا سامنا ہوگا JK پولیس کے ساتھ۔ سری نگر میں 1 مہینے تک جاری رہنے والا نیشنل کیاکنگ اور کینوئنگ کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے اولمپک کوالیفائرز کے لیے لگایا گیا تھا 24 سلیکٹڈ کھلاڑیوں کے لیے یہ پریپریٹری کیمپ۔ اور نیشنل سب جونیئر ووشو چیمپئن شپ میں سری نگر کی 2 بہنوں علیزہ شاہ اور کائفہ شاہ نے جیتے میڈلز۔ علیزہ شاہ نے گولڈ میڈل حاصل کیا جبکہ کائفہ شاہ نے سلور میڈل حاصل کیا۔ دونوں سسٹرز کی شاندار پرفارمنس۔ ناظرین، یہ تھی لوکل سپورٹس کی کچھ خاص خبریں، اور اب نظر ڈالتے ہیں باقی نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس پر۔ نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو سیریز کے تیسرے T20 میچ میں 65 رن سے ہرایا اور سیریز میں 3-0 سے کامیابی درج کی۔ مارٹن گپٹل نے 44 اور فن ایلن نے 71 رنز بنائے۔ ٹاڈ ایسٹل نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ٹم سوڈی نے لی 3 وکٹیں۔ بھارت نے انگلینڈ کو سیریز کے تیسرے ون ڈے میچ میں 7 رن سے ہرا کر 2-1 سے سیریز جیت لی۔ سیریز کے بعد بھارت کے کیپٹن وراٹ کوہلی ICC ODI رینکنگ میں پہلے نمبر پر قائم ہیں۔ جسپریت بمراہ، جنہوں نے سیریز میں گیند بازی نہیں کی اور انہوں نے اس سیریز میں شرکت نہیں کی، چوتھے نمبر پر ہیں۔ جسپریت بمراہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں شامل نہیں کیے گئے، ان کو آرام دیا گیا۔ بھارت کے شاندار بیٹسمین روہت شرما ODI رینکنگ میں تیسرے نمبر پر، اور KL راہل 31ویں سے 27ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ رشبھ پنت کو دلی کیپٹلز کا کیپٹن بنایا گیا ہے IPL 2021 کے لیے۔ اور IPL 2021 میں BCCI نے ان ٹیموں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو سلو اوور ریٹ کا مرتکب ہوں گی۔ امریکہ میں میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے آخری مراحل میں۔ جاپان کی ناومی اوساکا کا 23 لگاتار جیت کا سلسلہ گریس کی ماریا سکاری نے توڑ دیا۔
سکاری نے اوساکا کو 6-4 اور 6-0 سے ہرا دیا۔ دوسری طرف دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی نے سیمی فائنل میں ایلینا سویتلیونا کو 6-3 اور 6-3 سے ہرایا۔ فائنل میں آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی کا مقابلہ بیانکا اینڈریسکو سے ہوگا، جنہوں نے سیمی فائنل میں ماریا سکاری کو ہرا دیا۔ مردوں میں روبرٹو باوتستا نے کوارٹر فائنل میں ڈینیل میڈویڈیو کو ہرایا اور ایک اور کوارٹر فائنل میں یانک سنر نے ایلیکس بوبلک کو شکست دے دی۔ اب سیمی فائنل میں روبرٹو باوتستا کا مقابلہ یانک سنر سے ہوگا۔ 2022 ورلڈ کپ کوالیفائرز میں جرمنی کو نارتھ میسیڈونیا نے 2-1 سے ہرا دیا اور بڑا اپسیٹ کر دیا۔ 4 مرتبہ کی ورلڈ کپ ونر جرمنی کے خلاف الماس اور پانڈیو نے نارتھ میسیڈونیا کی طرف سے گول سکور کیے، جبکہ گندوگن نے جرمنی کے لیے گول سکور کیا۔ سابق چیمپئن اسپین نے کوسوو کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اسپین اب گروپ بی میں 7 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ کر رہا ہے۔ ایک اور سابق چیمپئن اٹلی کی ٹیم نے لتوینیا کو اپنے ورلڈ کپ کوالیفائر میں 2-0 سے ہرا دیا۔ جھارکھنڈ میں ہونے والے ہاکی جونیئر نیشنلز کے ٹورنامنٹ کو بڑھتے کووڈ کیسز کی بدولت پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا سپورٹس راؤنڈ اپ ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اور اب پروگرام میں جو ایک خاص سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے گلوریس پاسٹ۔ کیا ہوگا اس گلوریس پاسٹ میں آج کے شمارے میں، یہ آپ کو پتا چلے گا، اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں روشن خیال کے پاس۔ دوستو، کرکٹ کی تاریخ میں ایسا پہلی بار واقعہ پیش آیا ہے اننگز میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جو کہ آج تک پیش نہیں آئے۔ ایک بالر نے 1 اوور کیا، اس میں ہیٹ ٹرک لی، اور اسی بالر کے اگلے اوور میں 6 بالوں پر 6 چھکے مارے گئے۔ بالر تھے دھننجے اور بلے باز تھے پولارڈ۔ یہ میچ تھا سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان۔ آئیے وہ ہیٹ ٹرک دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں 6 چھکے۔ Marvelous partnership. Straight. Will it be taken? He's gone. Success here for Dhananjaya. Huge shot for I Love You. Not impressed. Umpire Nigel Duguid. Niall O'Brien was raising his hands here in the come box. Yeah, they send it upstairs. They're going to have to send it upstairs. Might have gotten it. Is he gone? Yes, he's gone. It's a hat-trick for Akila Dhananjaya. Just trying to turn this game on the head. It's the 4th hat-trick for Sri Lankans. 2 for Lassit Malinga, 1 for Thisara Pereira. Well, he joins that list now. And Nicholas Pooran, like Chris Gayle. He gets it there by some distance. Kieron Pollard. No doubt about that one. It's a 6-hitting festival either side of the 3 wickets, the 4 wickets that have fallen. He goes again. 3 in 3 for the West Indies captain. A bemused look on the face of Dhananjaya. No, he can't. Make it a dose of 4 for Kieron Pollard.
Oh, goodness. 5 sixes. And all of a sudden, Herschel Gibbs and Yuvraj Singh start jogging your memory. 6 sixes for Kieron Pollard. Herschel Gibbs, Yuvraj Singh, you have company. नाज़रीन, कुदरत ने कश्मीर को बर्फपोश कोसार, सरसब्ज और शादाद, अशजार और आबी वसाइल से मालामाल किया है। और जब भी आबी वसाइल की बात करते हैं तो बात आती है वाटर स्पोर्ट्स की, और जब भी हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बात आती है वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन की, जिसका नाम है बिल्किस मीर। आइए इनसे बात करते हैं। बिल्किस मीर, आप वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। हाल ही में आप बहुत बिजी रही और आप डल में एक इंडिया कैंप में शामिल थी, उसको सुपरवाइज कर रही थी। उस कैंप के बारे में बताइए। ये कैंप जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस कैंप रहा, और आज अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर का वाटर स्पोर्ट्स उस लेवल तक आया कि हम होल्ड कर रहे हैं नेशनल कैंप। ये कैंप इंडियन कयाकिंग कैनोइंग ने दिया था यहाँ पर, और जिसमें जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू पार्क, आज आपने देखा होगा कि एक टोटली चेंज और कंट्री के बेस्ट सेंटर्स में माना जाता है। ये कैंप क्वालिफाइंग राउंड जो हमारा पटाया में है टोक्यो के लिए 2021 का, उसकी प्रिपरेशन में ये कैंप यहाँ लगाया गया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की यहाँ कैंप लगाने के लिए, क्योंकि अब उस लेवल तक आए हैं कि यहाँ पर ऐसे कैंप्स हम कंडक्ट कर सकें। ये जो बोट्स हैं ये मुनफरिद बोट्स हैं, कयाक जिसको कहते हैं और कनो कहते हैं। तो यहाँ पर डल में आपके पास खिलाड़ी थे और आप डेली रूटीन जो था आपका उसमें तरबियत देते थे उनको, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने की कोशिश करते थे। तो ये देखिए, ये है बिल्कुल, ये हमारा ट्रेनिंग सेक्शन, हमारी मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग होती है। ये जो स्पीड ट्रेनिंग हो रही है, और इसमें आप देख लीजिए हमारा ध्यान जैसे कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस पे हमारा बहुत इस कैंप में रहा। और ये कैंप हमने प्रोफेशनल वे में ये किया था प्लान। हमारा जो एम था कि हाई ऑल्टीट्यूड का हम फायदा उठाए। आप देख रहे हो कि सबसे पहले जैसे हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप सेशन बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी के लिए वार्म अप जैसे मेन हमारा ये करवाना होता है ट्रेनिंग सेशन, उससे पहले हम वार्म अप, आप देख रहे हो कि खिलाड़ी वार्म अप में बहुत जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिफोर आप जो अपना मेन स्पेसिफिक वर्कआउट कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप होता है वार्म अप। आप देख रहे हो खिलाड़ी नेहरू पार्क में वार्म अप करते हुए, और वार्म अप का लाइक 15 to 20 मिनट्स की ड्यूरेशन रहती है, जिसमें टॉप टू बॉटम हमें हर मतलब बॉडी को वार्म अप करना है प्रॉपर वे में, चाहे लेग्स हो, आर्म हो, अपर बॉडी है, क्योंकि कैनोइंग कयाकिंग में अपर बॉडी का बड़ा रोल रहता है और वार्म अप सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मौसम थोड़ा ठंडा है अभी और बॉडी जो है बहुत स्टिफ होती है, बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वार्म अप का बहुत, क्योंकि विदाउट वार्म अप के पहले अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो आप मेन ऐसे उतरते हो मेन इवेंट मेन इसके लिए ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे लगता है इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं। मसल पुल हो सकता है। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ये रहता है कि वार्म अप अच्छी तरह से खिलाड़ी को करे। वार्म अप के बाद जो हमारा टारगेटिंग ट्रेनिंग होता है उस दिन, जैसे हर दिन का हमारा प्लान रहता है, आप देख लीजिए खिलाड़ी पुशअप करते हुए, सिटअप करते हुए, लेग रेजेस करते हुए, और उसके बाद हम पानी में उतरते हैं। आप देख रहे हो कि इसमें स्पेसिफिक टेक्निक होती है हाउ टू कैरी बोट। अच्छा, ये बोट देखिए इतनी लंबी बोट होती है, ये कार्बन बोट होती है, ऐसा लगता है कि बहुत भारी होगी लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं होती। लेकिन साथ में दिलचस्पी की बात यह है कि ये एक बोट जो है, चाहे K1 अगर होगा तो एक खिलाड़ी का बोझ बर्दाश्त करेगा 50-60 किलो, और अगर दो खिलाड़ी K2 हो और तो 120, और K4 में आप देखिए 4 खिलाड़ियों का बोझ ये बर्दाश्त करती है, कितनी हल्की। बिल्कुल सर, मैं आपको बताती हूँ, ये जो बोट्स है, ये बोट्स आज हमारे पास है, ये बोट्स ओलंपिक और एशियन गेम्स में इस्तेमाल होते हैं। इस K1 का अगर वेट देखा जाएगा 12 kg, इट्स 100% कार्बन। ये जो इक्विपमेंट J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने लाया है एक साल से, जो आप तब्दीली देख रहे हो, ये सारा इक्विपमेंट ओलंपिक और एशियन गेम्स में ही आप देखोगे। इक्विपमेंट बहुत महंगा है,
بالکल बहुत महंगा है। जो है 2.5 लाख की है और इसका जो आप जो ये C2 देख रहे हो ये कम से कम 4 लाख का है विद पैडल। तो 4 लाख का ये बोट है और ये बोट्स 100% कार्बन है और ये बोट्स कंट्री में हमारे पास है और मध्य प्रदेश के पास है। दैट्स व्हाई वी आर लकी कि वी हैव कैंप नेशनल कोचिंग। ये जो आपने इंडिया कैंप किया इसमें आप रूटीन जो आपकी थी डेली सुबह 8 से 10 बजे तक और दिन को 3 बजे से 5 बजे तक, इस दौरान आप ये कयाक्स को और कनोइंग जो सर हमारा फोकस इस पे ज्यादा स्पीड एंडोरेंस पे रहा। आप देख रहे हो कि पीछे कोच जैसे मोटर बोट पे कमांड देता है, ये 5 मिनट का पैच चल रहा है, 2 मिनट का पैच चल रहा है, सर्किट ट्रेनिंग हम पानी में कर रहे हैं और इसमें क्या है कि हम खिलाड़ी को ट्रेन कर रहे हैं फॉर क्वालिफाइंग राउंड। आप देख लीजिए इसमें स्ट्रेंथ का कितना रोल है, एंडोरेंस का कितना रोल है और कोऑर्डिनेशन का कितना इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए कि हमारा अभी K2 है जिसमें हमें होप है और C2 वुमेन में हमें होप है कि हमारी लड़कियां अच्छा करें और ये देख लीजिए K2 जो हमारा है इस पे भी उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे। जो क्वालिफाइंग राउंड हमारा है 6 इवेंट्स हमारे हैं जिसमें कोटा है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्री को मिले क्योंकि इस कैंप से हमें बहुत फायदा मिला, हाई ऑल्टीट्यूड का फायदा बहुत मिला। जी, ये जो कयाकिंग है, कयाकिंग में K2 यानी एक बोट में 2 लड़के बैठते हैं या 2 लड़कियां होंगी। ये आपको यहाँ पर देख लीजिए कितना कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट है और आप देख लीजिए इनकी अपर बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्पीड और इसी पे हमने काम किया। हमने ये कैंप बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में डिजाइन किया था और इसमें सपोर्टिंग स्टाफ का जैसे हमारा फिजियो, डॉक्टर्स, कोचेज ने मिलकर एक साउंड प्लानिंग साइंटिफिक वे में हमने इस कैंप को लिया और उम्मीद करते हैं कि इस कैंप से हमें फायदा। ये देख लीजिए कैनो जो नीलिंग पोजीशन पे है और सिंगल ब्लेड से ये पैडल करते हैं, इसमें भी इंडिया को बहुत चांसेस है और आने वाले दौर में वाटर स्पोर्ट्स जैसे कायाकिंग कैनोइंग इज द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट एंड वी हैव 16 मेडल्स इन ओलंपिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे स्टेट गवर्नमेंट J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा रोल रहा है ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है हमें अच्छे रिजल्ट्स आने वाले दौर में आपको मिलेंगे। जी, कयाकिंग के साथ साथ कनोइंग में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल। और कनो गेम जो है थोड़ा डिफरेंट है कयाकिंग से क्योंकि कयाक में आप अंदर बैठते हैं पूरा नॉर्मल तरीके से, लेकिन कनो में आप घुटने पे ये देख लीजिए नीलिंग पोजीशन और सिंगल ब्लेड और खिलाड़ी को जो भी कंट्रोल बोट का करना है वो उसको पैडल से करना है। जैसे कयाक में रॉडर होता है वो उसको कंट्रोल करता है डायरेक्शन राइट जाना लेफ्ट, ये सिटिंग पोजीशन है और डबल ब्लेड है। कैनो में नीलिंग पोजीशन होता है और सिंगल ब्लेड होता है। तो आप देख लीजिए कि हमारे गेम में स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए दो लड़के K2 इसी K2 पे मैं सिंक्रोनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट K2 का मैंने जैसे बोला हमने जो प्लान किया बहुत अच्छी टाइमिंग भी आई जब हमने ट्रायल लिया। उम्मीद करते हैं कि K2 अच्छा करेगा। जो हमारा 6 इवेंट्स का क्वालिफाइंग ग्राउंड है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, इसमें तमाम फैसिलिटीज हैं और ये आपके लिए बैकबोन है इस खेल को आगे बढ़ाने। सर आज अगर देखा जाएगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट ने और स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें और सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी हमें मिल रहा है। तो आप देख लीजिए छोटा बच्चा कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इस मौके पर जब हम ये अक्समन कर रहे थे तो वहां पर कुछ खिलाड़ियों से हमने बात की। आइए देखते हैं उनके तासुरात। मेरे साथ इस वक्त हैं नमिता चंदेल जो कि मध्य प्रदेश की हैं, इनसे बात करते हैं। नमिता, आप C1 कर रही हैं जी, तो इसके बारे में बताइए। ये जो कैंप आपने यहाँ पे अटेंड किया है इससे आपको कितना फायदा हुआ है? सभी को मेरा नमस्ते। और हमें यहाँ लगभग 1 महीना होने को आया है। हम यहाँ 1 महीने से इंडिया टीम में हैं और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपिक क्वालिफायर राउंड के लिए। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम यहाँ कश्मीर में कैंप आने के लिए मिला है क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड है जो हमारी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो गेम है आपकी कनोइंग, कनो 1, आप कनो 2 में भी C2 में भी पार्टिसिपेट करती हैं या C1 ही करती हैं? मोस्टली हमारे में सिंगल डबल 4 होता है तो मैं सिंगल डबल 4 तीनों में ही पार्ट करती हूँ। बट इंटरनेशनल लेवल पे हमें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे अपना फोकस रखना होता है। तो अभी मैं C1 200 मीटर में फोकस कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप ओलंपिक्स के लिए तैयार हैं इस कैंप के बाद? वी विल डू आवर बेस्ट। हम यही कह सकते हैं कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे आगे अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो एक और खिलाड़ी से भी हमने बात की थी वहां पर मौके पे। ये खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं,
कयाक में इनका देखिए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर कश्मीर में? कश्मीर में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि सर्दी का मौसम और हाई ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे पानी में इतना हार्ड बहुत बेनिफिट मिल रहा है हमसे, तो यहाँ पे ट्रेनिंग वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितने कोचेज हैं और जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में क्या कहते हैं आप? यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट है वो अपना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का टॉप 11 का नंबर 1 ऐसे इक्विपमेंट है इधर ही। हमको यहाँ पे ट्रेनिंग करके जो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग कर रहा है इसी बोर्ड में हम वहाँ पे भी पार्टिसिपेट, जो अभी ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए जा रहा है इसी बोर्ड में ही उतरना है। हम यहाँ से एडवांटेज बहुत मिल रहा है यहाँ पे इक्विपमेंट से भी। ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, सब कुछ मतलब यहाँ पे मौसम का और वेव का, हाई ऑल्टीट्यूड का, सर्दी का बहुत बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से। आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स में जो नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है? मैंने पहले नेशनल 2012 से अभी तक गोल्ड सिल्वर बहुत जीत चुका, मतलब टोटल मैंने गिना तो नहीं, लेकिन नेशनल लेवल में 12 गोल तक के आसपास आ गया और इंटरनेशनल का एक इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट है। कहाँ पे खेला था आपने? मैं इंटरनेशनल जो मेडल्स लिया था मैंने इंडिया में खेला था, भोपाल अपर लेक में हुआ था। इसमें केतु 500 मीटर में सिल्वर लिया था और मैंने एशियन गेम्स में भी केतु किया था। इसमें 1000 मीटर में फाइनल में 7-8 पोजीशन में। Are you ready for the Olympics if possible? Yes, of course. I am ready for Olympic. All the best. Thank you. बिल्कुल जी, ये जो हमने देखा वहाँ पर, और लगता है कि इस कैंप के इनेकाद करने से कि हमारा जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ये इंडिया कैंप जो है आगे रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। जब इंडिया की टीम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी, आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है ओलंपिक्स में मेडल हासिल करना। बिल्कुल, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर स्टेट लीड कर रहा है आज वाटर स्पोर्ट्स में। आज हम नेशनल कोचिंग कैंप कर रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो दिन दूर नहीं कि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स यहां कंडक्ट कर सकते हैं। शायद एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो, फारूक भट्ट साहब इनका नाम है। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, पूछिए अपना सवाल अपना पूछिए। जी सर, एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रहा हूं, मैंने सर सिर्फ इसे फोन किया है कि जो आपने ओपन में आज का सवाल पूछा था, जी जी, मैं उसी के बारे में कहना चाहता था कि मेरे हिसाब से उसका जवाब स्मृति मंदाना है। अच्छा, चलिए मैं आपको बता दूं माजरत के साथ, सवाल का जवाब जो आपका है वो सही नहीं है। चलिए सर, फिर भी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा बने इस प्रोग्राम का, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है फारूक साहब कि आइंदा आपका जवाब सही होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था सेगमेंट वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से जो नेशनल कैंप मुनक्किद हुआ डल लेक में, और 24 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए थे और अब ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए जो है वो जाएंगे पटाया थाईलैंड, और वहां से ये उम्मीद की जा सकती है कि उनकी सिलेक्शन होगी ओलंपिक्स टोक्यो के लिए। तो ये जो सवाल हमने पूछा था, माजरत के साथ कहते हैं कि हम तक जितने जवाब पहुंचे, अभी एक फोन पर भी जवाब आया, सही नहीं थे। सही जवाब है मिथाली राज। जी हां, भारत की फॉर्मर कैप्टन मिथाली राज सही जवाब है, जिनकी तस्वीर आपने देखी प्रोग्राम के आगाज में आज के सवाल सेगमेंट में, और उन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए क्रिकेट में कुल मिलाकर। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती आरा से नवाजिए और आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।